क्योंकि डेंटल केयर चालू होता है एक न्यू बॉर्न बच्चे से लेके हर 6 महीने पे, है ना। लेकिन आजकल कोई बच्चों को भी क्लिनिक में नहीं लेके आ रहे, उनको ये लग रहा है कि इनके तो दूध के दांत हैं, बाद में गिर जाए। सो कॉमन आजकल जो बढ़ रहा है वो है बच्चों के दांत के सड़न वगैरह जो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, सबका चिप्स, चॉकलेट, स्टिकी फूड ये बढ़ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है अपने ज्यादा च्यू करके खाने की चीजें कम ले रहे हैं बच्चे, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं। Hello everyone, I am Jitendra Singh, a banker turned entrepreneur and author of the book Pep Hack Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Dr. Shweta Patel Mehta. She is a dental surgeon and implantologist at Smile Dent. She did schooling from Pardee and Vapi and did her graduation from the prestigious Rajasthan University of Health and Science. She is a practicing dentistry for more than 12 years now, and she is a family dentist providing professional dental treatment to patients of all the age groups. She has been awarded with multiple appreciations and awards through society and multiple organizations as well. Today she will be discussing with us about her life journey. So let us hear from her. Welcome, Dr. Shweta. The platform is open and now over to you. Thank you. Thank you. So, first thing I'd like to know from you is like we all have certain thoughts about us, about our career options, what we want to do in life in future. So, on that note, if I talk about you, how did your past life has affected the person who you wanted to be in your life and what you are? So this is very interesting and little like a fairy tale if I tell you. So I was 5 years old and I had a massive toothache and my face was swollen to some this big. And nobody in Vapi was ready to entertain my parents to get my treatment done. Luckily, my father has a friend who is an anesthetist in Surat. In Maskati hospital, he was working, and his friend was in the dental department. So we went from Vapi to Surat, and there also in the dental department, we were told that unless the swelling subsides, I would not be treated. So we stayed at my father's other friend for 5 days till my swelling subsided. And even after everything, my tooth was removed. So I was that young when I had to go through this torturous dental pain. It was really painful. And that doctor, I told him, you made this a very painful experience for me. And I was very young and I told him that I will become a dentist and I'll not give any pain. My father remembered my words. I was kid, I played along and I always wanted to be a dentist. My marks were great. I could be a candidate for MBBS as well, but I chose dentistry over my MBBS. Right. So how you feel now as being a dentist? Obviously, I'm very happy by doing whatever I'm doing. I have always been a dental patient. I still am a dental patient. I have a sweet tooth. I'm a sweet lover. So I was a kid. मेरी स्कूल से मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए जाती थी. So जिन डेंटिस्ट के पास मेरी ट्रीटमेंट होती थी, he is only my role model, I can say. So उनके पास ट्रीटमेंट होते होते I turned a dentist and then I started working with him only. So I worked 5 years with him. And then after my marriage and my first baby, I started my own clinic. Right. That's really wonderful. So it is like I always wanted to be a dentist and I'm practicing dentistry very happily. And I'm would likely say that there are very less active female dentists as of now. And I'm proudly one of them. Great. Wonderful. So if I talk about things you are passionate about in your life, what are those things? I was very studious and very notorious at the same time. I'm very passionate about my dentistry, first of all. I'm also very passionate about awareness and dental education, which I don't miss a chance. Wherever I'm invited, I give my best possible awareness education to them. Secondly, I'm a minimalist. I do not have many, fancy desires and all. And I'm very environmental conservative kind of person. I always think about the biominimalism before doing anything. And why you practicing minimalism? I don't know, but I think things are not always necessary. I believe in empathy, giveaways. जैसे बोलते हैं, kindness is not very costly, but it is the richest gift you can give to anyone.
Correct. So I belong to that kind of people. I'm born and brought up in a very small gam in Vapi, near Vapi. Basically, I asked this question because usually women are moreover shopaholic and they are spendthrift usually. Yeah. So I am an anti kind of that thing, not like that, but there are many occasions when I deny gifts as well. So I'm not material kind of a person. No doubt, जो चीजें जरूरी है वो जरूरी है, but I would not overstock them or overpossess them. Correct. We should understand this also because that is also kind of making harm to the environment. So Anyways. we should use things which are necessary for us. Maybe to some addition, it would be helpful, but we should not waste things also on the other side. So you already mentioned about your work and experiences. So I'd like to know from you about your work and experiences, what all you do, how you do, what kind of experiences you had throughout your journey related to your work and like working as a dentist. So working as a dentist, जैसे कॉलेज से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पीपल यूज टू टेक मेनी हॉलीडेज एंड मैं उदयपुर से पढ़ी हुई हूँ, सो थोड़ा दूर पड़ जाता है वापस. सो आई डिडंट यूज टू फ्रीक्वेंटली कम टू होम. सो मैं ज्यादा कॉलेज में ही रहती थी. मेरे सीनियर्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन था, तो मैंने ज्यादा सीखा है अपनी कॉलेज से ही. सो मैंने ज्यादा बंक वंक नहीं मारती थी, तो आई रियली गॉट द सेंस ऑफ व्हाट दिस बेसिक एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन विल गिव इन द फ्यूचर लाइफ. उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला, जो मेरे डेंटिस्ट है डॉक्टर तपन देसाई, उन्हीं के उधर मैं प्रैक्टिस करने स्टार्ट किया. सो ही वाज ओवरवेल्म्ड विद माय कॉन्फिडेंस एंड डे वन से मैं जब से काम कर रही हूँ, मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं एक फ्रेशर हूँ या फिर उन्होंने मेरे को कहीं पे स्टॉप किया. ही हैज पम्प्ड इन ऑल द कॉन्फिडेंस इन मी. उसके बाद ऐसा होता रहा कि जो भी काम हम सीखते गए, तो उसमें आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट परफेक्टली और डोंट डू इट. सो उसके साथ साथ मैंने जो भी वीकेंड्स पे प्राइवेट कोर्सेज होते हैं या हैंड्स ऑन कोर्सेज होते हैं, वो सारे मैंने चालू रखे. इवन आफ्टर माय बेबी माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव कि जहां भी कोर्सेज होते थे हम फैमिली साथ में जाती थी, मैं पढ़ाई करती थी और वो बाप बेटे अपना मस्ती मजा करते थे वीकेंड्स पे, एंड शाम में फिर वापस लौटते थे. Great. सो ऐसे ऐसे करके आई स्टिल एम अ गुड, लाइक आई थिंक आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि मेरे को सीखना बहुत ज्यादा पसंद है. फिर जैसे सर के उधर मैं काम करती थी, तो उधर सर से हमने सीखा क्या काम करना है, उससे ज्यादा ये भी सीखा कि क्या क्या नहीं करना है हमारी प्रैक्टिस में. सो उधर जो भी लोग आते थे, they were from the stratas की वो वर्कर क्लास भी होते थे एंड ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज और मल्टी मिलियनर लोग भी आते थे. सो नाउ व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, सो यहाँ के लोग जो वापी इज अ कॉस्मो, तो मैंने ये रियलाइज किया कि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और साथ में टाइम भी नहीं है, तो अपना डेंटल हाइजीन वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं. सो व्हेन आई वर्क, आई मेक इट अ पॉइंट दैट फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज ऑलवेज काउंसलिंग सेशन, नोइंग द पेशेंट प्रॉपर्ली, एंड देन पेशेंट की जरूरतें क्या है वो ज्यादा समझना. काफी बार पेशेंट ये बोलते थे कि ये ही कर दो, लेकिन वो हो जाता है कि पेशेंट का वो वांट हो जाता है, एंड आई अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पेशेंट कि उनके लिए क्या जरूरी है. सो माइन इज अ नीड बेस्ड डेंटिस्ट्री, नॉट वांट बेस्ड डेंटिस्ट्री. उसमें भी अभी काफी कैटेगराइजेशन आ गया है, लोग डिजिटल जा रहे हैं, सब कुछ इम्प्लांट्स ही हो रहा है, डिजिटली ये हो रहा है. उसी चक्कर में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट कहीं काफी हद तक नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि चीजें आपको पता है डेंटिस्ट्री महंगा है. बट एक्चुअली डेंटिस्ट्री महंगा नहीं है, नेग्लेक्ट महंगा है. अगर आप एक रेगुलर चेकअप में रहो, आपके दांत आप सड़ने ही नहीं दो, तो आपको कुछ खर्चा नहीं आने वाला है. So I'm just trying to make that difference and let people know कि get your routine checkups done. आप एक डेंटिस्ट को दर्द होने के बाद मिलोगे तो ऑब्वियसली वो आपको खर्चा देगा. So when I've started working, मैंने ये रियलाइज किया कि काफी लोग अपने डॉक्टर्स पे इतना ब्लाइंडली फेथ करके वो लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं. They do not worry about उनके दांत में क्या हो रहा है. One thing they worry about is मेरा पेन सही हो जाना चाहिए, और दूसरा चीज जो वरी करते हैं कि खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए. So I'm trying to break that stereotype. I'm trying to explain the patients कि ये आपका प्रॉब्लम है, आपने ये ट्रीटमेंट करवाया तो इसके ये फायदे हैं, आपने ये ट्रीटमेंट करवाया तो इसका ये फायदा है. Patient then understand the importance of the treatment and then they spend money. They make treatment their priority. तो उसको वो खर्चा नहीं लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है.
करेक्ट। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल मेरे चेयर मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद वो लोग रोए भी है कि दे हैड दिस प्रॉब्लम फॉर सो मेनी इयर्स विच वाज नॉट एड्रेस्ड। काफी बार अननोन ओरिजिन का पेन होता है जिसका काफी बार अननोटिस जाता है, अनडायग्नोज जाता है। तो काफी छोटी छोटी चीजें पकड़ के वो क्योर करना एंड पेशेंट फाइंडिंग अ फ्रेंड इन यू इज इम्पोर्टेंट, कि वो आपसे इतना वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि दे कैन शेयर देयर परफेक्ट फीलिंग, कि वो दांत का काफी बार अपन को लगता है वो पेन एड्रेस कर रहे हैं या डिस्कम्फर्ट एड्रेस कर, लेकिन अल्टीमेटली दे आर लो ऑन कॉन्फिडेंट कि वो दांत की वजह से अच्छे से हंस नहीं सकते हैं, अच्छे से जो पसंद है वो खा नहीं सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें उनको बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती हैं। राइट। काफी बार मेरे पेशेंट्स मुझे ये भी बोल के जाते हैं कि आप जितना समझा के काम कर रहे हो उतना नहीं करते हैं। सो बेसिकली माय पेशेंट्स आर माय ब्रांड एम्बेसडर्स जो बाकी पेशेंट्स भेजते हैं, दैट्स एंड रियली दैट गिव्स एन वंडरफुल। अप्रिसिएशन। करेक्ट। और आपने जो बताया ना अवेयरनेस को लेके, अवेयरनेस वहाँ नहीं, सभी जगह आज के डेट में भी बहुत कम है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर डेंटल थिंग, लाइक बेसिक अदर हेल्थ इश्यूज वी अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग विच कैन बी सीन एंड फेल्ट। फीवर है तो पता चल जाएगा, बट डेंटल इश्यूज जो होते हैं ना वो दिखते नहीं है तो वो पता भी नहीं चलते, और लोग इग्नोरेंट भी हैं उस चीज को लेके। वो तो है। और Correct. मैं वही कहना चाह रही हूँ ना कि लेट अस मेक इट लाइक यू नो प्लीज 6 महीने में एक बार एटलीस्ट चेकअप तो करवाओ। जरूरी नहीं है, पहले ऐसा बोलते थे कि 6 महीने में एक बार दांत साफ करवाओ, लेकिन वो साफ करवाओ कब होगा जब पेशेंट आपके पास आएंगे। सो माई मोटो राइट नाउ इज 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से मिलो, चेकअप करवाओ। Correct. That is better because that will cost you lesser if you go for a pain Yes, relief, yes, yes. dental procedures and all. वो ज़्यादा costly पड़ेगा। तो अगर if I talk about your vision, mission and goal in life for next 5 to 10 years from now, what do you think that would be? My vision likewise is to be, you know, मैं जब तक काम करूंगी तब तक ही काम कर पाऊंगी। So my vision first of all is कि जो मेरे को पता है कि मैं अच्छे से एथिकली प्रिंसिपली राइट काम कर रही हूँ, वो जितने भी डेंटिस्ट हो सके उनको मैं वो फॉरवर्ड करूँ, ताकि मैं जो गुड वर्क या गुड डेंटिस्ट्री कर रही हूँ वो मेरे तक लिमिटेड नहीं रह जाना चाहिए। एंड वी आर नॉट इनटू अ बिजनेस कि वो अपने तक लिमिटेड रखे, कि सीक्रेट्स रखे। सो माय विजन इज कि अभी जो वो सेग्रीगेशन हो गया है ना, सब अपना अपना ही देख रहे हैं, दैट शुड बी डिसॉल्व्ड एंड पीपल शुड कम अलोंग एंड वर्क टुगेदर, अपना अपना थोड़ा एक्सपर्टीज दे एक दूसरे को एंड लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर। Correct. गोल ऐसा है कि मेरा जो अभी क्लिनिक है वो आई हैव 2 clinics इन वापी एंड बोथ आर डबल चेट क्लिनिक्स। सो माय विजन इज लाइक मैं मेरा क्लिनिकल एक्सपेंशन भी कमिंग 5 years में करूं। अभी तो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है ही, लेकिन और थोड़ा अपग्रेड करें एंड थोड़ा और बड़ा टीम करें, ताकि मैं जो एकदम हाई नॉचेस जो जैसे जो नो स्माइल डिजाइन हो गए हैं, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन हो गए हैं, इम्प्लांट्स हो गए हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया है, खाली उसी पे ध्यान दे सकूं। एंड बाकी जो मेरी टीम है वो बेसिक डेंटिस्ट्री करे, अवेयरनेस का काम करे, प्रोफाइल एक्सिस का काम करे, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स करे, ताकि एक मास गिव अवे भी हो। एंड जैसे हमने गोल बोला कि कहीं ना कहीं ऐसा भी एक है विचार कि कुछ ऐसा कर सके जाकि जो महंगी पड़ रही है सबको ट्रीटमेंट, उसका कोई मिडल वे निकल सके। करेक्ट। मतलब कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, एनीथिंग कुछ भी जो इन्वॉल्व हो सके, जो आ सके, कुछ काम तो होना चाहिए उस पे भी। सो दैट्स रियली वंडरफुल टू नो। सो इफ आई टॉक अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स यू हैव लर्नड सो फार इन योर जर्नी, कुड बी पर्सनल और प्रोफेशनल, सो व्हाट इज दैट? लाइफ लेसन्स जो मैंने सीखे हैं वो यही है कि यू ओनली आर हियर टू सर्व, यू नो। ऐसा नहीं है कि आपके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इफ आई एम नॉट देयर टुमारो, आपकी जगह कोई और ले गया और आपका ये काम आगे चलता रहेगा। सो पीपल शुड स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू देमसेल्फ कि मैं हूं तो ही ये हो रहा है ना। व्हाई डू आई से दैट? आई हैव लॉस्ट 2 important people, माय नाना एंड दादा, इन द लास्ट ईयर। सो उन्होंने मेरे को बहुत बेसिक लाइफ लेसन सिखाए हैं, और उनके जाने के बाद मुझे ये लग रहा है कि वो नहीं है फिर भी हो रही चीजें, यू नो। सो काफी ऐसे लोग हैं जो अपने इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज में या जो भी एसोसिएशन में है, तो उस टाइम पे उनको लग जाता है कि मैं हूं तो ही ये हो रहा है। जैसे काफी जो टॉप नॉच डेंटिस्ट है, उनको जो न्यू कमर्स या फ्रेशर्स आके देखते हैं, उनको लगता है कि नो, हम ये एक्सीलेंस नहीं अचीव कर सकते उनका सक्सेस वगैरह देख के। आई वॉज ब्लेस्ड के आई वॉज वर्किंग इन अ सक्सेसफुल डेंटिस्ट का क्लिनिक में, एंड ही पम्प्ड मी विद ऑल द कॉन्फिडेंस। एंड आज भी वो मिलने आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आई एम वेरी प्राउड दैट यू आर एसोसिएटेड विद मी। सो ये सारी चीजें जो है ना, मैं चाहती हूँ कि हर कोई करे, यू नो, दैट इज हाउ एवरीवन कैन ग्रो। करेक्ट। तो मैं यही
वही मैंने जैसे आपने बोला, दिस इज अ लाइफ लेसन कि ऐसा नहीं है कि अपन ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी और ने किया है तो अपन कर सकते हैं। एंड वी शुड नॉट बी दैट इगोइस्टिक कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। और लाइफ का ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि जो चीज आप अच्छा कर रहे हो कर सकते हो, अब वो पास ऑन भी करो लेगेसी दूसरों को, ताकि वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। दैट इज हाउ वी ग्रो टुगेदर। और बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कि वी ग्रो टुगेदर। सो True. दैट इज वंडरफुल थिंग यू आर डूइंग। सो इफ आई टॉक अबाउट द कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स और रीजंस फॉर देम एंड व्हाट आर द कॉमन ट्रीटमेंट्स वी कैन हैव। जैसे बेसिकली मैं आपको बोलूं कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो आप बोल रहे हैं और उसका होने का रीजन भी जो बोल रहे हैं, तो टॉप नॉच आई वुड से इग्नोरेंस। क्योंकि डेंटल केयर चालू होता है एक न्यूबॉर्न बच्चे से लेके हर 6 महीने पे, है ना। लेकिन आजकल कोई बच्चों को भी क्लिनिक में नहीं लेके आ रहे, उनको ये लग रहा है कि इनके तो दूध के दांत हैं, बाद में गिर जाए। सो कॉमन आजकल जो बढ़ रहा है वो है बच्चों के दांत के सड़न वगैरह जो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि फूड हैबिट्स चेंज हो रहे हैं सबका। चिप्स, चॉकलेट्स, स्टिकी फूड ये बढ़ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है अपने स्वीट ड्रिंक्स बच्चों के, वो बढ़ रहे हैं। ज्यादा च्यू करके खाने की चीजें कम ले रहे हैं बच्चे, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं। तो क्योंकि उनके दूध के दांत ही ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो दूध का दांत का डेवलपमेंट परमानेंट दांत के डेवलपमेंट को ही हैम्पर कर रहा है। सो परमानेंट दांत में भी फिर वही वीकनेसेस आएगी और वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, तो उसकी ज्यादा सड़न रहेगी। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा ये हो गया कि नेग्लेक्ट के कारण या समय के अभाव के कारण जो लोग दांत की ट्रीटमेंट नहीं करवाते और दांत निकलवा देने का पसंद करते हैं, उसकी वजह से उनको ये नहीं समझता है कि वो दांत का एक जो जो परफेक्शन था या फिर क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे से डिपेंडेंसी था, वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि एक दांत निकला तो उसके आसपास के जो 4 दांत 5 दांत है वो भी अफेक्ट होते हैं। Correct. और उसको रिप्लेस करना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक इट इज 2 वे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और काउंसलिंग से भी वो चीजें काफी हद तक कम की जा सकती हैं। तीसरी ज्यादा करके प्रॉब्लम ये है कि लोगों का 2 टाइम ब्रशिंग नहीं हो रहा है, उसकी वजह से गम डिजीजेस बढ़ रहे हैं। मतलब दांत तो अच्छे हैं उनके, लेकिन मसूड़ों में और हड्डी में जो इन्फेक्शन लग जा रहा है उसकी वजह से जिंजिवाइटिस मतलब कि मसूड़े का इन्फेक्शन, और पेरियोडोंटाइटिस मतलब जो जनरल में पायरिया बोलते हैं, वो वाले इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो अच्छे दांत भी हिल के गिर जाते हैं। Okay. एंड काफी जैसे मैंने बोला कि निकाले हुए दांत नहीं रिप्लेस करने के कारण च्यूइंग इनसफिशिएंट होती है, इनएफिशिएंट होती है। उसकी वजह से काफी लोग खाली राइट साइड खा रहे हैं, खाली लेफ्ट साइड खा रहे हैं, तो अपना जो जॉ है उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। काफी लोग को नहीं समझता है कि क्लेंचिंग कर रहे हैं, नाइट ब्रक्सिज्म हो रहा है, स्ट्रेस के कारण दांत पिचक रहे हैं, उसका इफेक्ट जॉइंट्स पे आ रहा है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है। सो काफी लोगों को हेडेक्स भी होता है जॉइंट और जॉस की वजह से, और वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं कि हाँ ये दांतों की वजह से है, ये जॉ की वजह से है। सो ऑल इन ऑल एक बीडीएस और मतलब डेंटल और मेडिकल लेवल पे भी जो कोलैबोरेशन या ब्रिजिंग होना चाहिए वो भी नहीं है। राइट। सो इससे भी हो सकता है। तो जो हेडेक का एक रीजन बताया, जॉइंट्स के बीच में जो गैप कम होता है या दांतों में प्रॉब्लम जो होती है उसकी वजह से भी होता है, which I was also not aware कि इस वजह से भी ये हो सकता है। So there are so many things people are not aware of. So that is how awareness is so important these days. And if I talk about Obviously, कोई इंसान एक गाड़ी लेता है तो उसकी रेगुलर मेंटेनेंस और सर्विसिंग करवाता है। एक कॉमन सी बात है कि अपन जब पैदा होते हैं तब दांत के बगैर पैदा होते हैं, है ना। सो एक बड़ा सा मिथ ये है कि अब जब मरते हैं तब दांत के बगैर मरेंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको दांत बाद में मिले हैं तो आप उसको मेंटेनेंस रखो, चेकअप करवाओ। सो यू विल डाई हैप्पीली विद ऑल योर टीथ ईटिंग हैप्पीली। आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से चबाओगे तो आपको बाकी के रोग भी नहीं होंगे। जैसे मुख आपके शरीर का द्वार है ना। पहले के जमाने में ऐसा था कि फिजिशियन के पास आप जाते थे तो वो बिठाते थे, आपकी आंख चेक करते थे, आपका नाक चेक करते थे, मुंह खुलवा के देखते थे, जबान देखते थे। आजकल हमारे अलावा मुंह में कोई नहीं देख रहा है। अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट नोबडी इज वॉचिंग योर माउथ। एंड काफी ऐसी बोलने जाए तो ऑलमोस्ट ऑल द डिजीज इन योर बॉडी कैन बी कॉट इन योर माउथ। आपके शरीर में कोई भी आदि व्याधि उपाधि हो, यू ओपन योर माउथ एंड वी कैन कम टू नो। देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो हमने रूटीन चेकअप में डायबिटीज के लिए रिफर किया है या B12 डेफिशिएंसी के लिए रिफर किया है। सो दैट इज लाइक वो डेंटिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब एक पेशेंट आपके पास डेंटल चेकअप के लिए आता है तो अपना
आईज उस हिसाब से ओपन रख के चेक करे या आप उसको सिस्टमेटिकली कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो भी डायग्नोज करने का एक गोल रखे. So that could be a support to the patient. That could be a game changer. That could be a game changer. Because उसको initial level पे ही सब कुछ पकड़ जाएगा. Correct. And also, if I go to a dentist who is supporting me, guiding me in that sense, this is also kind of problem may arise. Obviously, my trust with the dentist would always be higher as compared to earlier. तो वो एक game changer in terms of the business भी है और in terms of customer के satisfaction को भी बढ़ाएगा. That is really important. So, if I talk about the care we can do on daily basis to avoid such issues, तो एक तो ब्रशिंग है, उसके अलावा एक रेगुलर चेकअप है. एनीथिंग एल्स वी कैन डू? सी ब्रशिंग जो है वी कैन टर्म इट लाइक ब्रशिंग 2 times. ब्रशिंग 2 times a day which is compulsory. रात का ब्रश आपका मोर इम्पोर्टेंटली कंपल्सरी होना चाहिए, है ना, क्योंकि दिन का ब्रश आप भाग दौड़ में करते हैं बिकॉज यू वांट टू स्टार्ट योर डे. अगर आप कर सकते हैं अच्छे से पहले से ही तो बेस्ट थिंग है. और 2 टाइम ब्रश कर लिया, उसी तरीके से आपको गार्गलिंग भी इफिशिएंटली करना है. आप कुछ भी खाओ उसके बाद इफेक्टिव गार्गलिंग करना. और रूटीन चेकअप हो गया. फ्लॉसिंग भी अपने इधर इतना हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए जो भी आप खा रहे हो वो खाना मुंह के लिए नहीं है, पेट के लिए है. जो भी अच्छे से चबा के खाइए, बाकी का गार्गल करके साफ कीजिए. Right. That should not stick to your mouth after you have finished with your food. Correct. तो बच्चों के साथ में तो ये खासकर प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपरली च्यू नहीं करते एंड दे कीप इट इन देयर माउथ फॉर लॉन्ग. च्यूइंग ऐसे देखने जाए तो जैसे अपने बुक्स में, एंशिएंट बुक्स में, आयुर्वेदा में सब में लिखा है कि यू शुड च्यू योर फूड एटलीस्ट फॉर 40 to 42 times. तो एक मॉर्सल आपका उतना च्यू होना चाहिए. आज आप लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड टू एन एक्सटेंट. पीपल फास्ट फूड के साथ फास्ट ईटिंग भी कर रहे हैं. Which is also one of the reasons कि आपके दांत उस तरीके से यूज नहीं हो रहे हैं. And anything which is not used properly also tends to damage. Correct. वो तो important है because you have to practice good habits on dental part also, because what happens is kids आज के डेट में उनको खाना दे दो तो they take very long time if the food is homemade, but if the fast food is offered to them, so they will finish it up in hardly 10 minutes. So that is a big problem with kids these days. So even adults have the same problem. Yeah, right. Taste is the issue, I guess. So if I talk about you now again, so are you an introvert or an extrovert kind of a person when you meet people or large gatherings? And what do you think plus or minus of the same is? See, introvert or extrovert की categorize करना is like, I would not say like that. मैं किसी dental gathering में हूँ या किसी professional gathering में हूँ तो I find myself an extrovert. कि मैं सबसे अच्छे से मिलती हूँ, सबसे कुछ न कुछ सीखने का वो रहता है मेरा कि सबसे बात करूंगी, उनके बारे में जान पाऊंगी, कैसे वो अपना डेंटल प्रैक्टिस लीड करते हैं, कैसे वो अपने प्रोफेशन को एक डिफरेंस देते हैं, बाकियों से कैसे अलग है. सो अगर जब तक आप सामने से नहीं पूछोगे आपको कोई बताएगा नहीं, एंड खाली पूछोगे तो भी नहीं बताएगा. सो दैट इज अ टाइम जब आपको एक्सट्रोवर्ट रहना ही पड़ेगा. यू हैव टू कम एंड टॉक. अभी जैसे आप मान लो, जैसे आपने जैसे बोला कि women are very shopaholics and very I don't know. So अगर कोई सोशल गैदरिंग जो नॉट वेरी प्रोफेशनल है, कोई सोशल गैदरिंग है, तो उधर मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोवर्ट देखती हूँ कि आई वुड नॉट बी द फर्स्ट वन टू स्पीक. या फैमिली गैदरिंग है तो या आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एनी टाइम. बट जो चीज मेरे को नहीं पता है जिसके बारे में, उधर में जा के उस एरिया में आई वुड नॉट बी एन एक्सट्रोवर्ट फॉर श्योर. आई विल टेक माई टाइम टू जेल अप विद दोज पीपल एंड दैट कम्युनिटी व्हाटएवर. और वो एटमॉस्फेयर में एक बार मेरे को लगे कि हाँ दिस इज ऑल्सो आई वुड बी यूजफुल टू समवन, तो मैं उसमें इंटरमिंगल होंगी, नहीं तो आई वुड नॉट वेस्ट एनीबॉडीज और माई दोनों का टाइम. Correct. And that is the right approach also. And if I talk about the kind of support you got in your journey, so who were the people supported you the most? This was, I think, मेरा सबसे important question है, because I have 2 sets of parents. जो एक मेरे पेरेंट्स है और एक मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स है. मेरी फैमिली ने मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनाया. मेरी स्कूल ने सारे वैल्यूज डाले. मेरे फादर ने मेरे को याद दिलाया कि तू 5 साल की थी जब तेरे को डेंटिस्ट बनना था. सो ही बीइंग अ फार्मर एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, माय पेरेंट्स पुट ऑल देयर हार्ड अर्न मनी टू मेक मी अ डॉक्टर.
और बहुत अच्छे से एक डॉक्टर बनाया। जैसे ही शादी हुई आई केम इनटू दिस फैमिली एंड यहाँ के जो पेरेंट्स है उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा बिकॉज दे आर लुकिंग आफ्टर मी। लाइक अभी भी हम लोग ऐसे आई एम 34 नाउ बट हम लोग के ऊपर इतना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिकॉज वी बोथ आर वर्किंग। आई एम अ प्राउड पेरेंट ऑफ 2 kids but they look after my kids also. That is why I'm more extrovert in my field also. मैं डेंटिस्ट्री को ज्यादा टाइम इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को कोई मदरली टाइम दे रहा है। Correct. So they have been and my family has always been my support. मेरे को ना मेरे घर में ना मेरे ससुराल में कभी भी ऐसा लगा कि I am not appreciated. और मैं ऐसी हूं नहीं कि मुझे अप्रिशिएशन चाहिए। आई वर्क एम्पैथी हैज बीन माय फर्स्ट फुट। कुछ होते हुए देख के बैठ के देखते रहना इज नॉट माई थिंग। आई डू थिंग्स अपफ्रंट, जो भी मेरे से हो सकता है आई वुड डू थिंग्स एंड आई डू नॉट वेट फॉर अप्रिसिएशन। सो मेरे को सपोर्ट हर जगह से मिला है एंड माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो बीन वेरी सपोर्टिव। और हाँ, मेरे फैमिली इज माई बिगेस्ट सपोर्ट। माई हस्बैंड हैज बीन अ मदर टू 3 of us. सो मैं थोड़ी नेग्लेक्ट में जाती हूँ, लाइक ये नहीं करना है, ठीक है। माई प्रायोरिटी इज ऑलवेज डेंटिस्ट्री। सो बाकी चीजों में पुश करने का काम मेरे हस्बैंड का है। Great. My brother is also very supportive. Time to time, he keeps a check on me. But both set of parents and my grandparents, they have been an immense, जो pillar बना अपना foundation बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। Great, and that's really wonderful. So, if I talk about your inspiration and motivation in life, how you get your motivation and inspiration from? My mom. So my family has been my father is BSc B farmed. उन्होंने फार्मेसी कर रखी है बट ही इज ऑल्सो अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन. ही इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड ही हैज हेल्प मोर देन 300 families to get out of alcohol problems. So I think interviewing him would be more beneficial for your audience. Definitely, that's why I was thinking. And my mom, she has been a very good support. She has been a very good wife. She has been a very good mother. Jumping all the odds, she had made me what I am. So out of a difficult childhood, she has been my role model. If she can survive in those odd days, आज तो टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे अच्छे दिन हैं, बहुत सारे सुविधाएं हैं एंड सपोर्ट भी है. जो सपोर्ट उसे नहीं मिला था वो सारा सपोर्ट मुझे मिल रहा है. आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम माई इन-लॉज, माई पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी. सो माई मोटिवेशन इज माई मदर एनी टाइम. हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं रहा है कि बच्चा पैम्परिंग और लाला पोपो, वो नहीं हुआ है. वी हैव बीन बचपन से वी आर एडल्ट्स. ऐसा वी हैव got a very matured upbringing and both my parents are best of parents anyone can have. Great, wonderful. So what is your take on success? How does it look like to you? जैसे मेरी मम्मा बोलती है, she is like there are less deserving people than you जो आज गाड़ी में है, बंगले में है. So that is her vision कि वो मेरी बेटी इधर होनी चाहिए या वो ऐसी होनी चाहिए. We being proper गुज्जू पटेल्स, हमारे सारा सेटलमेंट अमेरिका में होता है. So I was that odd one out जो मेरे को यूएस से नहीं जाना चाहिए था. तो मेरे को नहीं जाना था, इसलिए मैं वापी में सेटल्ड हूँ. एंड माई स्टोरी ऑफ सक्सेस इज लाइक मेरे को जब मन करे मैं मेरे पेरेंट्स को देख पाऊँ, मेरे पेरेंट्स को जब मुझे मिलने का मन होए वो देख पाए. एंड सक्सेस इज इन योर परसेप्शन. आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप कितने कंटेंट हो. सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी. इट इज लाइक सेटलमेंट विद योर माइंड कि आप क्या सक्सेस को क्या रेट देते हो. मेकिंग द एंड्स मीट योर. जैसे आज मैंने आज ही अपना स्टेटस में डाला है कि यूनिवर्स इज नॉट वरीड अबाउट योर अचीवमेंट्स. इट इज ओनली वरीड अबाउट हाउ गुड हार्ट यू हैव. So I'm just trying to be a good person every day. मेरे पेशेंट्स की लाइफ में आई एम ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस. नो डाउट पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, बिकॉज मैं भी कुछ खरीद के कुछ ट्रीटमेंट कर रही हूँ एंड रनिंग दिस क्लिनिक ऑल्सो टेक्स मनी. सो बिजनेस इज बिजनेस बट वी डू नॉट ट्राई टू मेक रॉन्ग मनी एनीवेज. Correct. That is really important because what happens is whatever you do for yourself and others, that creates an impact. And if you are creating an impact as a doctor, people see you. And if people see you, they follow you, what you do and what you don't do. So if you are inspiration for so many people, you cannot go wrong. You have to be on right path always. So
So this is what I also believe in, and I also work on that on the same line. So that's wonderful. So, as a little giveaway to the society or the fraternity, I can say I've started this externship program. Externship program is like, freshly graduated doctors or the doctors who even after working feel कि मेरे को कुछ चीजें नहीं अच्छे से आती हैं. गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस का वर्किंग एटमॉस्फेयर डिफरेंट होता है और प्राइवेट क्लिनिक का वर्किंग एटमॉस्फेयर और पैटर्न डिफरेंट होता है. So I groom dentists at my clinic for the period of 3 to 6 months, and which is usually paid, but I do it for free. I do not charge any money for my externship courses, and the target remains the same, that मेरे इधर से कोई externship complete करके जाए should be efficient enough to start their own clinic. Correct. And you are doing it for all or for a specific segment of people? जैसे मैंने बोला ना कि actually I am little biased. Usually I do it for only girls for now, because girls ऐसा है ना कि काफी girls शादी के बाद give up कर देती है dentistry, काफी girls बच्चों के बाद give up कर देती है dentistry. So I usually try to pump that energy and confidence in them that it is easy if it is in your mind to make the personal and professional life balance equal. And even शादी के बाद personal, professional, social balance is also, it is like makhan if you are not stressed. You can manage everything. You can manage your personal life, you can manage your professional life, your social life, your married life. Everything is easy unless, आपको dentistry करने का एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे मेरा काम नहीं छोड़ना, तो सब हो सकता है. That is why indirectly I do this externship, ताकि किसी का भला हो. And there are lots of अभी हाल ही में कोरोना के बाद there are so many postpartum depression की suicide cases भी होते हैं. Even डॉक्टर्स में डिलीवरी के बाद postpartum depression के cases और suicides होते हैं, which is sad. There are people who are suffering, but उनको सुनने वाला कोई नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है. काफी लोगों को लग जाता है ये डॉक्टर है, इसको तो सब पता ही है. लेकिन postpartum depression is very less talked in India. तो पिछले साल कोरोना से पहले और उसके बाद भी इन एंड अराउंड वापी 3 केसेस ऐसे हुए थे जो postpartum depression से हुए थे, जिसमें से 2 थी डॉक्टर्स. So female doctors. Yes, female doctors. राइट. और एक्चुअली में ये केसेस कुछ पिछले एक डिकेड में काफी ज्यादा बढ़े बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, सो एंड सो मेनी रीजंस आल्सो. कई बार अभी का जनरेशन जिस चीज को डिप्रेशन बोलते हैं वो पास्ट जनरेशन को बोले तो वो लोग उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं. सो इट इज जस्ट ये तो हम करते ही आ रहे हैं वाला एटीट्यूड, बट दोज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी का जनरेशन ये पैर नहीं कर पा रहा है, तो वो जो हेल्पिंग हैंड या सपोर्ट चाहिए वो डॉक्टर्स को भी चाहिए. सो मैरिड फीमेल डॉक्टर्स नीड टू बी लिसन्ड वेल, अंडरस्टूड वेल, है ना. काफी लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के लिए नहीं काम करते हैं, अपने पैशन के लिए करते हैं. उनका घर डेंटिस्ट्री के पैसों से नहीं चल रहा होता है. So that makes it easy कि उनको give up करवा दे कि यार आप कहाँ जा रहे हो, इससे अच्छा तो आप ये कर लो. So I have been training girls and I know in and out of everything. So as I said, I have a 2 set of good parents जिसकी वजह से I am here where I am, जो मेरे को सपोर्ट करते हैं. वो सपोर्ट सभी की लाइफ में बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप प्रोफेशनली काम करो तो डेफिनेटली वो फैमिली सपोर्ट तो चाहिए. बट बीइंग टुडेज रियलिटी इज कि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, तो पेरेंट्स का सपोर्ट जिस तरह से मिल पाता था पहले, वो आज की डेट में उस तरह से नहीं मिल पाता. यू आर दी ओनली पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स एज वेल एज योर करियर. सो वहां जाके कंप्रोमाइज भी होता है. तो अगर आपको फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो यू एटलीस्ट हैव बैकिंग की मेरे पीछे मेरे बच्चों को देखने के लिए पेरेंट्स हैं, तो देन यू कैन फोकस ऑन योर करियर ऑल्सो, विच इज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो हम लोगों को वो समझना पड़ेगा कि जो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट वी शुड बी अ यूनाइटेड फैमिली. पेरेंट्स हमारे साथ में रहें या हम पेरेंट्स के साथ में रहे, इट्स सेम थिंग. और वो पेरेंट्स की सपोर्ट जो रहेगा दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स. वन इज लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट विच वी फील्स दीज डेज. स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन जो भी हो रहा है, एक तो वो पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो चीज ईज आउट हो जाता है काफी हद तक. पेरेंट्स काफी चीजें सपोर्ट कर देते हैं और बच्चों को देख रेख करने के लिए भी कोई है, तो यू कैन बी फ्री कि हाँ मेरा बच्चा एक अच्छे जगह पे है, मेरे पेरेंट्स के साथ में है, तो यू कैन बी स्ट्रेस फ्री
कंसंट्रेटली ऑन दैट थिंग ऑल्सो, और फिर आप अपने काम पे भी फोकस कर सकते हो। वही माहौल में आप अच्छे से काम कर पाएंगे, इफ योर किड्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो वाले एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि ये लोग अच्छे वातावरण में है, तो अपना माइंड भी एट पीस होगा एंड आप अपना बेस्ट दे पाएंगे आपके काम में। सो दिस इज गेटिंग डाइल्यूटेड, अपना जो है वो टॉपिक बहुत वास्ट होते जा रहा है, बट आई वुड सम इट अप लाइक यू टुक एन इंटरव्यू ऑफ मी एज इन सक्सेसफुल डेंटिस्ट, तो ये मेरे सक्सेस की थोड़ी नींव हो जाती है। एंड सक्सेस, एज आई सेड, के काम करते रहना फॉर मेनी फीमेल्स इज ऑल्सो सक्सेस. Correct. I like That this. is why I had to at this point and I had to talk about it. So that's great to hear about your thoughts related to success. Wonderful. So if I ask you to share any message, advice with our viewers and listeners, what would that be? First thing, as a dentist, I would always say that dental health is more than important from anything, because if you ignore that, you're not going to eat properly. And हमारे कॉलेज के day 1 पे हमें बोला था, dental pain is next to labor pain. So all the men who wants to experience labor pain can wait for their teeth to get bad and then come to dentist. But if you want to save on your money, save your pockets, stay happily, healthily eating person, then please get your dental checkup done. अगर वापी आ रहे तो हमारे क्लिनिक पे आके चेक करवाएं. Wonderful, great. Any other advice? एम्पैथी, आई थिंक एम्पैथी को सबसे ऊपर रखना चाहिए लोगों को. आपके व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे आपने बोला कि जो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, यू हैव टू गिव योर स्लीपलेस नाइट्स, यू हैव टू गिव योर लॉट ऑफ प्रायोरिटीज ओवर इट. वो एक चीज, एक सेंटर पे आप फोकस करेंगे तो ही आप सक्सेस उस चीज में ले पाओगे. सो लाइफ एज अ होल आप देखने जाए तो जैसे मैंने पहले बोला कि nobody is bothered about your achievements, but when you're leaving, you want to make big, you have to be perseverant about it. और आपका विजन एकदम क्लियर होके आपको उसी डायरेक्शन में चलते रहना है very perseverantly, and you'll have to give your 200%, तो आपको 100% feedback positive मिलेगा. Definitely, and that's really important one. So thank you so very much. It was amazing having you here. You have shared so many insight about dental thing which we always ignore in our life, day-to-day life, and that is really important to have a check on regular basis, and also practice correctly whatever we are doing. Yes, if we are having वही बोलने जा रही थी कि आपके पेशेंट्स आजकल जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स रील्स लगाते हैं, या फिर गूगल पे भी बहुत सारा नॉलेज है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं. तो आजकल लोगों को हॉलीवुड स्माइल चाहिए, फुल माउथ रिहैब चाहिए, वाइट टीथ चाहिए, परफेक्ट स्माइल, और वो सारा कुछ करने के लिए हाँ मैं सब कुछ करती हूँ. सबको यही लगेगा कि ये रूटीन चेकअप बोल रही है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो ये चीजें हम ट्रीटमेंट्स, बड़ी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन हु अंडरस्टैंड एंड गेट ट्रीटमेंट डन. बाकी काफी लोग ऐसे हैं जो बिना दांत के भी खा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई फोकस ऑन सेइंग कि प्लीज गेट योर रूटीन चेकअप्स डन, ताकि आप दांत खोएंगे ही नहीं तो नए लगाने ही पड़े, बिकॉज भगवान ने जो दिया है उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है. और रूटीन जो हमारा है रिलेटेड टू आवर फूड हैबिट्स, दैट शुड बी करेक्टेड प्रॉपर्ली. और उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग ब्रशिंग इज रियली इम्पोर्टेंट वन विच वी ऑलवेज मिस ऑन. So that is a care we always do at our own self. So thank you so very much, Dr. Shweta. It was amazing having you here today and discussing all about dentistry. Thank you so much. Thank you so much, because we always, till date, what we have done is only talking about dentistry in detail. आज अपने dentistry के इर्द गिर्द की भी थोड़ी बातें की. Basics of dentistry. Yeah, it was basics of dentistry. क्योंकि अभी 12 साल में ऐसा हो गया कि we talk top notch dentistry, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट सक्सेसफुली चलती है, कौन से पेशेंट्स को क्या देना चाहिए. सो अ बेसिक टेक अवे टुडे इज प्लीज लुक आफ्टर योर डेंटिशियन प्रॉपर्ली, और फैमिली को भी रूटीन चेकअप कराए. मैं तो बोल रही हूँ नया ट्रेंड लाइए, बर्थडे पे रूटीन चेकअप्स गिफ्ट में दीजिए, वैलेंटाइंस पे स्माइल एनहेंसमेंट गिफ्ट्स दीजिए. दिस इज नाइस. आई हैव फ्यू पीपल जो अपने बर्थडे पे रिलीजियसली एवरी ईयर अपना आके चेकअप करवाते हैं. दैट इज वेरी गुड. उस टाइम पे मेरे को लगता है कि हाँ, मेकिंग डिफरेंस इन देयर लाइफ. And this is really important. You just talked about gifting someone a happy smile is wonderful thing, wonderful gift for them. So could be a very important
one. So thank you so very much, Dr. Shweta, for having being here and sharing so many things. Probably we will have another session soon, and we will talk much more details about the problems and their solutions also. Thank you for your time. I will also share your social media links so that people around you can come to see you and take your guidance related to their dental problems. Guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much, everyone, for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share, subscribe. Have a good time. Thank you, and bye bye.